Can you tell us about how the movie in the US is shaping up? What kind of response you're receiving? Well, the movie in US is growing. Since the first screening we did in Dallas, that was our testing ground क्योंकि हमें पता नहीं था ऑडियंस किस तरह से रिएक्ट करेगी और चूंकि एक बहुत ही अननोन टेरिटरी में हमने भी जाने की कोशिश की है विद द मूवी सो वी वर अ लिटिल नर्वस बट Dallas we received an amazing response and then it just grew in Houston. उसके बाद we've done about 6 screenings till now and with every screening we realized that the number of screens were increasing, the capacity was increasing, and by the sheer word of mouth, people, are, they want to see the film. So for us, it was a great, feeling to have so many people come into the theaters to watch the film, and the feeling that they were left with at the end of the movie was just amazing to see. It just fills my heart when you see people crying, feeling patriotic, and saying, yes, India can do it in the end, because that is what we are here for. I watched one of the screenings. I saw the standing ovation you got in DC. The same you have received in other places as well? Oh Everywhere, yeah, everywhere. I would say Washington DC audience is a bit sophisticated. Okay. So it was very sophisticated, but in places like Houston and San Jose and I think Chicago, these were like people really go crazy and it's very but what I'm liking is that it's uniting people. Because a lot of people I've seen in screenings, there come somebody's from Telugu Association, then Marathi Association, and in real life they were a bit distant. They do their own job. But here I've seen that after the screening, everybody's hugging each other, as if just जैसे क्रिकेट मैच में वर्ल्ड कप जीतते हैं तो जो बगल में खड़ा है पता नहीं कौन है उसको हक कर लेते हैं, किसी को लोग कॉफी बियर खरीद के दे देते हैं. तो ये जो हो रहा है वहाँ डीसी में भी मैंने देखा उस दिन. पीपल वर लाफिंग, स्माइलिंग. आई थिंक एक पॉजिटिविटी की इतनी कमी हो गई है आजकल. हर समय नेगेटिविटी हमें मिलती है. तो जब कुछ अच्छा पॉजिटिव होता है और इंस्पायरिंग होता है और लोग उसे देखते हैं तो एक जो इमोशन क्रिएट होता है, दैट्स व्हाट दिस फिल्म इज डूइंग, बाइंडिंग पीपल टुगेदर. तो बॉलीवुड में बहुत ही कम लोग इस तरह की मूवी बनाते हैं. मोस्टली डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी. तो इस मूवी को बनाने के लिए व्हेन एंड व्हाई डिड यू डिसाइड? पहले तो हम बॉलीवुड नहीं है तो इसलिए हम इस तरह की फिल्में बना सकते हैं. बाकी पल्लवी बताएंगी कैसे. बाकी मेरे ख्याल से इसका जन्म कहाँ से हुआ शायद मैं बता सकती हूँ. कोविड जब आया तब हम लोग वी वर ऑल सेट टू मेक कश्मीर फाइल्स. इनफैक्ट वी वर लीविंग फॉर कश्मीर and just 2 days before our schedule we got a call from our federation saying that all shootings are stopped until March 31st, and then a few days later lockdown lag gaya. And I think as every individual we also started researching कि ये virus क्या है, ये lab leak है या ये whether this is like a war against humans. So we were all researching, we were doing our own bit. So everybody was kind of focusing on the virus, and then suddenly we started hearing about vaccines और ये सब social media पे बहुत चल रहा था. So we were anyway invested in that. और जैसे ही फर्स्ट वेव ख़त्म हुई, सेकेंड वेव शुरू होने के पहले when we were shooting Kashmir Files, that time we happened to meet a scientist named Dr. Anna Dogra, who actually works in ICMR. And she suggested that, why don't you make a movie on this subject? As we got talking, she said, why, it's a great subject for a movie. And then Dr. Balram Bhargav has written a book called Going Viral. So we got the rights of that book. And then we realized the amount of work that the scientists have done. It's not just inside the lab, but, like finding monkeys, evacuating people from Iran. I mean, they just went completely out of their comfort zone. And we thought that this is a great story to tell. And I think the icing on the cake was the fact that about 70% of the scientists are women. So I think that somewhere touched a chord inside me. And then Vivek said, this is something that we must show to the world. This will show them what Indic empowerment is all about. मेरा एक और भी रीज़न था कि जिससे भी हमारी बात हुई शुरू में फाइनेंस के लिए, मनी और सब, तो सबने बोला अरे पागल हो, मर जाओगे, ये नहीं बनाना, चाहे कुछ भी हो जाए. तो मैंने पल्लवी को, देखो सब मना कर रहे हैं, इसका मतलब इसको बनाना ही चाहिए. एंड आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, नो कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ. तो मुझे लगा कि ये इसलिए बनाना चाहिए कि कोई और बनाएगा ही नहीं इसको, अगर ये कॉमन
एक लॉजिक है कि ये सब्जेक्ट कोई देखना पसंद नहीं करेगा, बट लेकिन जो रिस्पॉन्स है आपने भी देखा, लोगों को तो अच्छी लग रही है कहानी। इस मूवी को बनाने में कितना रिसर्च आप लोगों को करना पड़ा? साइंस का पहले से कोई बैकग्राउंड था आप लोगों के पास? हाउ डिड यू डू इट? मेरा तो बिल्कुल नहीं है। विवेक थोड़े इंटरेस्टेड भी है साइंस में, मेरा तो इंटरेस्ट भी नहीं था पहले। और जहाँ तक रिसर्च है वो आई थिंक विवेक एंड आवर रिसर्च टीम टुक केयर ऑफ इट, बिकॉज जब इसका रिसर्च शुरू हुआ तो कश्मीर फाइल्स का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था, सो आई वाज लुकिंग आफ्टर दैट एंड विवेक एंड टीम डिड द रिसर्च। मेरी सबसे ज़्यादा मुझे impossible situation lagi when I was playing one of the scientists and I had to speak all those scientific terminologies as if it's like an everyday thing for me. Right. So that was very challenging. So we started off as completely raw, but by the time the film ended, we were all talking so scientifically. I think all the actors grew into their parts, you know. But yeah, it was science was the most difficult part, and then to simplify that science and put it in script form. I don't know how he's managed to do that. पहले देखिए, पहले तो जो मेरा आइडिया था पूरी तरह से साइंस फिल्म बनाने का 100%, मैं पूरी, लेकिन जब मैंने रिसर्च शुरू किया तो इंटरव्यूज शुरू किए। तो इंटरव्यूज करते करते एक स्टेज पे आके मैंने अपने असिस्टेंट से बोला, यार सिर्फ ये औरतों के ही इंटरव्यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो फिर जो डायरेक्टर थी एनआईवी की, डॉक्टर प्रज्ञा यादव, मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर आप हमें क्या जानबूझे कोई स्ट्रेटजी आपकी कि सिर्फ औरतों का रहा है, बाकी लोगों के भी करना चाहता हूँ। कहते हैं बाकी कौन? मैंने कहा और भी तो साइंटिस्ट होंगे यहाँ, मेरा मतलब आप समझ गए कि मैंने तो बोली नहीं, यहाँ पे तो मोस्टली जितनी साइंटिस्ट हैं औरतें ही हैं। तो उसके ऊपर काफ़ी मेरा डिस्कशन हुआ, ऐसा क्यों? मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने मीडिया इंटरव्यू में लोग बोलेंगे नहीं, पर मैंने उनसे यही बोला कि मैंने ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में लड़कियों की शादी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं कुछ नहीं है तो चलो बीएड कर लो, चलो अच्छा बायो साइंस तो कोई करता नहीं। उन्होंने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लैब के अंदर बंद रहना और ये जिस तरह की वो मल्टीटास्किंग और लोनलीनेस और डिप्रेस्ड उसमें होती है, जनरली मैन डोंट हैव दैट काइंड ऑफ रेजिलियंस एंड टॉलरेंस फॉर दैट एटमॉस्फेयर, और औरतें खुशी खुशी करती हैं उसको। दैट चेंज माई माइंड, क्योंकि एक धारणा ऐसी बन गई है कहीं पे कि जो इंडियन औरतें जो घरों का भी काम करती हैं और पति और बच्चों की भी सेवा, सास ससुर की भी करती हैं, पड़ोसियों की भी सेवा करती हैं और ज़्यादा मटीरियलिज्म से मतलब नहीं होता, वो बहुत एम्पावर्ड नहीं है। एक ऐसी एक धारणा फिल्मों में भी दिखाया है, विमेन एम्पावरमेंट की जितनी भी फिल्में हैं उसमें दिखाते हैं अक्सर बॉलीवुड में कि वो लड़की एम्पावरमेंट के नाम पे कहती है कि मैं शराब पीऊंगी या मैं सिगरेट पीऊंगी या मैं मॉडर्न कपड़े पहनूंगी। तो हमने हर चीज को, एम्पावरमेंट को सिनेमा के माध्यम से, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सिनेमा के माध्यम से वहीं पे लाके रख दिया है। कई ऐसी फिल्में हैं जो बहुत मुझे भी अच्छी लगती हैं। कंगना जी की एक फिल्म थी क्वीन, बहुत प्यारी फिल्म थी, लेकिन उसमें भी मुद्दा अल्टीमेटली एम्पावरमेंट के नाम पे फ्रीडम पे आ जाता है, मुझे फ्रीडम दो देन आई एम एम्पावर्ड। पर ये महिलाएं ना तो फ्रीडम मांग रही हैं, ना वो इक्वालिटी मांग रही, कुछ नहीं मांग रही हैं, वो सिर्फ अपने काम को बेस्ट तरीके से करना चाहती हैं। तो मुझे लगा ये एक अलग तरह के विमेन एम्पावरमेंट की कहानी है और अलग तरह का पेट्रियोटिज्म है। इसमें कोई झंडा उठा के आपने देखा नहीं बोल रहा भारत माता की जय, जिंगोइज्म नहीं है, कोई सेना लड़ने नहीं जा रहा। तो जो लोग हमें दिखते नहीं है लेकिन नेशन बिल्डिंग का या हमें बचाने का काम करते हैं, वो भी तो सोल्जर्स ही हैं, तो उनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे मुझे लगता है टीचर्स को, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, ये मेरी दिल से इच्छा है कि उनके कंट्रीब्यूशन को कोई पहचानता नहीं है। तो इसलिए ये महिला साइंटिस्टों की, और ऑब्वियसली डॉक्टर बलराम भार्गव का तो लीडरशिप ही था, और कंट्री के नेशन, हमारे गवर्नमेंट की भी लीडरशिप बहुत कमाल की थी, तभी तो ये हो पाया। तो ये सब लोगों का जो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था सोसाइटी को लेके, दैट्स व्हाट वी सेलिब्रेटेड। इस पूरी मूवी में जो आपने दिखा है, इससे क्या मैसेज आप निकल के आता है? सबसे पहले तो ये निकल के आता है कि नेशन बिल्डिंग के लिए काफ़ी त्याग और तपस्या की ज़रूरत है, वो ऐसी नारों से नहीं होता है। और दूसरा ये है कि हम लोगों को सिर्फ क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के अलावा भी जो नेशनल हीरोज़ हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये इस फिल्म में थोड़ा एक दर्द भी है जो शायद निकल के नहीं, जितनी भी साइंटिस्ट थी, एक ही सीन में आया वो निकल के, जितनी भी साइंटिस्ट थे उन सब ने एक बात मुझसे बोली कि आज 75 साल में 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, झांकियां हर तरह की निकलती हैं, एग्रीकल्चर पे, इस पे, उस पे, मिल्क पे, अमूल पे, हर चीज़ पे, लेकिन आज तक भारत के साइंटिस्ट जो हैं बायो साइंस वाले एंड रॉकेटरी को छोड़ के बाकी जितने साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर एक भी झांकी नहीं निकली। और मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के, इसलिए दुख हुआ कि
आज अगर भारत प्रबल बन रहा है और भारत अगर स्ट्रांग बन रहा है तो उसमें हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। आप देखिए विश्व में जहाँ भी भारतीय हैं वो कहीं साइंस से, मेडिसिन से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो वो मुझे बुरा भी लगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म के बाद अगली 26 जनवरी को मैं तो इंतजार करूंगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन बनाई उनके लिए एक झांकी निकले। ये मेरी बहुत दिल से इच्छा है। एंड ऑल्सो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे महिला साइंटिस्ट ने तो किया ही है ये भारत में, बट इन यूएस हमने जब से स्क्रीनिंग शुरू की है, आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी वुमेन इन द ऑडियंसेस हु हैव टोल्ड मी दैट आई एम अ साइंटिस्ट। कोई यू नो एपिडेमियोलॉजिस्ट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सो आई रियलाइज दैट इंडियन वुमेन लिविंग हियर इन यूएस, दे आर ऑल्सो साइंटिस्ट्स एंड दे आर वाचिंग द फिल्म। सो इट्स इट्स अ ग्रेट Yeah, they are फीलिंग। not only India, US में भी Indian women scientists हैं। हाँ कहीं भी किसी लैब में चले जाएंगे, you find large number of them, उनका बड़ा contribution रहा जी है। जी इसके लिए आप लोग एक अनसंग हीरो को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू आर रिकॉग्नाइजिंग देम। इस पूरी मूवी में आपके रिसर्च के दौरान जो अभी निकला है उसमें कितना फैक्ट है, कितना फिक्शन? ये 100% फैक्ट है। इसीलिए आप देखिए कि सीबीएफसी, मैं हालांकि सीबीएफसी के बोर्ड में हूँ, तो बाई द गाइडलाइंस किसी भी स्टोरी के आगे अ ट्रू स्टोरी नहीं लिखने देते, हमेशा लिखते हैं इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी। ये पहली फिल्म है भारत के इतिहास में जिसमें अ ट्रू स्टोरी है। दूसरा, ये भारत के फिल्म के इतिहास में पहली फिल्म है जिसमें सबके रियल नाम है। जनरली जैसे अगर किसी सोल्जर पे बना तो हीरो का नाम वो होगा, बाकी सबके चेंज करते हैं, इसमें हर कैरेक्टर वही का वही है। एक छोटी एक दो हमने लिबर्टी ली है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी जिनको हमने एक में जोड़ दिया है, पर बाकी हमने किसी चीज में लिबर्टी नहीं ली है। जो उनके परिवारों के साथ हुआ, बच्चों के साथ हुआ, हस्बैंड्स के नाम भी वही हैं जो उनके हस्बैंड के नाम है, जो उनकी बहू बेटियों के नाम है वही नाम है। साइंटिस्ट लोगों की परमिशन के साथ किया है, साइंटिस्टों के सुपरविजन में पूरी फिल्म शूट हुई है। बंदर भी जो हमने यूज किए वो सब रियल बंदर हैं, आईसीएमआर के, वो कोई हमने हायर नहीं किए। वो जो माइस और गिनी पिग हैं वो भी असली हैं, और जो लोकेशंस हैं वो भी सारी असली हैं। ये पहली फिल्म विश्व के इतिहास में होगी जो कि रियल BSL-4 लैब में शूट हुई है। आज के पहले इतिहास में ना हॉलीवुड में, ना बॉलीवुड में, ना कोरिया, चाइना, कहीं पे नहीं हुई है। ये पहली ऐसी फिल्म है विच आई से इज मेड बाय द साइंटिस्ट्स ऑफ इंडिया एंड वी जस्ट बिकेम द मीडियम। एक तरफ तो इस मूवी में जो अनसंग हीरोज हैं उनको आपने सेलिब्रेट किया, दूसरी तरफ जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया है उसको आप एक विलेन के रूप में निकल के आता है। जी व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? आपके जेन्युइन रीजंस होंगे उसको जी। रिफ्लेक्ट करने के। देखिए, मैं खुद जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन से हूँ, और मेरा पहला जॉब इंडिया टुडे के साथ था। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। और उस जमाने में इंडिया टुडे वगैरह बहुत जर्नलिस्ट एथिक्स पे बिलीव करते थे, और प्रेरणा मिलती थी बड़े बड़े जर्नलिस्टों से। अरुण शौरी साहब थे, MJ अकबर साहब थे, अपने टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एडिटर थे, जी हाँ, इतने सारे लोग। तो एक से एक महान जर्नलिस्ट लोगों को हम लोग आदर्श मानते थे। लेकिन अभी तब जो थी जर्नलिज्म, वो देश और सरकार में फर्क समझती थी। आज कुछ ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है कि देश और सरकार के बीच की लाइन खत्म हो गई है। उसके जो पॉलिटिकल रीजन से होंगे, मैं उसकी मेरिट डिमेरिट में नहीं घुस रहा हूं। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि कोविड के वक्त में कुछ जर्नलिस्ट लोगों ने जो है बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया। वो ये चाहते थे कि वैक्सीन फेल हो जाए, भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाएं, ताकि ये गवर्नमेंट पे ब्लेम आ जाए और गवर्नमेंट जो है उस चक्कर में ट्रैप हो जाए, और टू एम्बैरेस देम, जो अच्छी बात नहीं थी। और इसके लिए कैंपेन चली, लगातार ट्वीट्स। हमने फिल्म में तो जो दिखाए सब रियल ट्वीट्स हैं, असली हैं, कोई हमने अब तो बनाए नहीं है, आर्टिकल्स भी असली हैं। और फिर ये जो वायर करके एक वेबसाइट है, उसकी एक जर्नलिस्ट थी, उनके जो आर्टिकल्स थे उसको फिर तेलंगाना कोर्ट ने ऑर्डर किया कि फेक न्यूज़ है, और उनको आदेश दिया आज के बाद आप कोवैक्सीन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं छाप सकते, क्योंकि आपके इंटेंशन जो है मिलीशियस है और देश हित में नहीं है। और आज तक वो छाप नहीं पाए उस बात को, तो वो हमने एज इट इज उसको दिखाया है। जहाँ तक टूल किट की बात जो मैंने दिखाई है, उसमें वो फाउंडेशन का नाम हमने चेंज कर दिया है, वरना टूल किट का कवर पेज एग्जैक्टली वही है जो टूल किट मेरे को जर्नलिस्ट लोगों ने दी है। तो वो कोई हमने अपने हाथ से नहीं बनाई है, इट्स नॉट अ डिजाइन, आई हैव बीन सप्लाइड बाय समबडी। सिर्फ हमने जो ऑर्गेनाइजेशन है, चूंकि वो बहुत ताकतवर और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हम किसी को बदनाम भी नहीं करना चाहते। ये भी सत्य है कि कुछ लोग जो हैं बड़ी फार्मा लॉबीज और वैक्सीन कंपनीज के बिहाफ पे
पब्लिसिटी कर रहे थे, उनकी कैंपेन कर रहे थे, जो आज के ज़माने में जायज़ है, जो टूल किट में होता ही है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनने जो लिखा है वो सब हमने सत्य उसमें दिखाया है। अब विलन बनाने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ। कुछ मीडिया के सेक्शन ने उस वक्त एक विलन का काम किया, जो किसी भी इंडिया रॉकेट को लेके भी देखिए, अभी आपने देखा होगा उसमें भी पॉलिटिक्स खड़ी हो गई, जो तो इतनी ह्यूमैनिटी की चीज़ है। भारत जब भी 2 कदम आगे लेने की कोशिश करता है, कुछ लोग उसको 4 कदम पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। मेरी शिकायत अमेरिका में बैठे जर्नलिस्ट, चाइना में बैठे से नहीं है। मेरी शिकायत सिर्फ अपने देश के जर्नलिस्ट लोगों से है कि तुम सरकार और देश के बीच में लाइन ड्रॉ करो। और इसलिए फिल्म में एक डायलॉग है, वो कहती भी है कि वो कहता है कि सरकार नहीं हारी, भारत हार गया। वो कहती है क्या फ़र्क है दोनों में? कहता वही जो हम भूल गए। और ये जो मैंने बड़े-बड़े गुरुओं से सीखा जर्नलिज्म में, ये वो आवाज़ थी जो इस फिल्म में मैं लेके आया हूँ। आपकी अपनी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन क्या, ऐसा क्यों है मीडिया के साथ भारत के मीडिया? मेरे ख्याल से सेक्टर में नहीं होगा, और भी सेक्टर में हो सकता है। सब काफ़ी सेक्टर्स में है। आई थिंक इसके पीछे कॉर्पोरेटाइजेशन जो है वो रीज़न है, और बॉलीवुड भी इसी से सफ़र कर रहा है। ऐसा नहीं है बॉलीवुड ने पहले फॉल्ट लाइन्स पे फिल्में नहीं बनाई, बिमल रॉय ने, महबूब साहब ने, ऋषिकेश मुखर्जी ने, श्याम बेनेगल ने, सबने बनाई है। लेकिन देश और सरकार के बीच का फ़र्क सबको पता था। सबको पता था कि भाई आर्मी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा करते हैं। पर आज मीडिया स्वयं आर्मी को गाली देता है, रॉकेट साइंटिस्ट को गाली देता है, जिनने वैक्सीन बनाई उनको देता है। कोई भी चीज़ जिससे कि देश की तारीफ हो रही है, प्रतिभा बढ़ रही है। मेरा ऐसा मानना है, आई हैव रीजंस टू बिलीव, आप जानते हैं मैं मीडिया से जुड़ा काफ़ी लिखता भी हूँ, बात भी करता हूँ, कि जो कॉर्पोरेटाइजेशन है इसमें फंडिंग कहाँ से आ रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, वो लॉबिंग कौन कर रहा है, डायरेक्टली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। आप देखिए फैक्ट चेकर्स का भी जो बिजनेस है वो एक्सटेंशन ऑफ मीडिया है। तो कुछ फैक्ट चेकर्स हैं जो एक ही वर्ग के लोगों को फैक्ट चेक करते हैं, एक हैं जो दूसरे को करते हैं। तो ये सब एजेंडा ड्रिवन है मेरे ख्याल से। और हम भारत आज एक उभरता हुआ ताकत है, काफ़ी बहुत ही तेज़ी से प्रगतिशील राष्ट्र है। उसको रोकने के लिए, उसके राह में अड़ंगे अड़ाने के लिए आप जानते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और मीडिया और सोशल मीडिया और फैक्ट चेकिंग से अच्छे वेपन्स आज की तारीख में कोई है नहीं। आप कॉर्पोरेटाइजेशन की बात करते हैं मीडिया में, तो यूएस में भी है कॉर्पोरेटाइजेशन, यूरोप में भी है, ऑलमोस्ट सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में है। भारत में ऐसा क्यों है कि यू थिंक दैट फॉरेन प्लेयर्स एबल टू इंक्लूड इनटू द मीडिया सेक्टर? जी, व्हाई डू यू थिंक दैट फॉरेन प्लेयर्स आर एबल टू इंक्लूड इनटू द मीडिया? भारत में क्यों It's a growing market. हस्तक्षेप क्यों कर पाते हैं? हाँ, same market. I think because the media needs money desperately. Media means newspaper, television. They cannot survive purely on subscription. They need big monies, and media is very expensive. इसीलिए देखिए आजकल सब home driven न्यूज़ होती जा रही हैं, because it's very expensive to go on ground. और चूंकि जर्नलिस्ट लोग ग्राउंड में नहीं जा रहे हैं, तो व्यूज पॉपुलर हो गए, न्यूज़ पीछे चली गई है। क्योंकि व्यूज़ तो कहीं भी बैठ के दे सकते हैं, न्यूज़ के लिए ग्राउंड में जाना पड़ता है, विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ओबी वैन लाओ, रिपोर्टर्स लाओ, पूरा तामझाम लेके आओ। इस चक्कर में क्या हुआ है कि जो पैसा चाहिए, बिग मनी, इट हैज़ टू कम फ्रॉम समवेयर, एंड जो भी वो पैसा लगाता है वो अपने हिसाब से लॉबिंग करवाता है। अगर पैसा लगाने वाली कंपनी कोई हेल्थ कंपनी है, तो वो आपको हेल्थ में अपने हिसाब से प्रमोट करने लगेगी, और अगर पॉलिटिकल हैं वो लोग तो करेंगे। और इंडिया के दुश्मन कम तो है नहीं, बहुत ज़्यादा हैं, आप जानते हैं इस बात। So how do we fight against this? I think citizen journalism is a very very important way of doing these things, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को करप्ट करना बहुत आसान है। अगर आपने पुरानी हिंदी फिल्में देखी हो, तो जर्नलिस्ट की धारणा होती थी, एक इमेज होती थी कि वो सत्य की तलाश में साइकिल में बैठा हुआ गर्मी में चला जा रहा है, और साइकिल की चेन उतर गई, और वो खुद हाथ से चेन लगा रहा है, तो फिर साइकिल फेंक के भाग रहा है और सत्य की तलाश कर रहा है। आज की तारीख में अगर आप जर्नलिस्ट को देखें हिंदी फिल्मों में, तो वो किसी माफिया वाले के साथ डांस देख रहा है, या किसी पॉलिटिशियन के साथ गप्पे मार रहा है, या हीरो को कुछ कर रहा है, वो एक एलीट क्लास में शामिल हो चुका है। इस नेक्सस को लोगों के सामने तक लाना, भारत में मीडिया की बहुत बुरी हाल है, शर्मजनक हाल है। और भारत का जो इतना नुकसान और हार्म हो रहा है, वो मीडिया के ही कारण हो, चाहे इस तरफ का हो चाहे उस तरफ का हो। क्योंकि आज किसी के पास भी न्यूज़ नहीं है, सिर्फ व्यूज़ 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 है। और ये व्यूज़ वो कॉर्पोरेट चलाते हैं जिनको अपना वेस्टेड इंटरेस्ट उसके अंदर है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ हर समय कि जो है मैं अपने तरीके से बताऊँ। आई थिंक सिटीजन जर्नलिज्म इज़ द नीड ऑफ चेंजिंग टाइम्स। जैसे अभी आप सब कुछ यू आर डूइंग ऑन योर ओन, आई थिंक दैट इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स रादर देन a big corporate delivering news, because I can't trust it anymore.
as someone having a background in journalism itself, right? What do you think जो 21st century में जब हम अमृतकाल की बात करते हैं 75 ईयर भारत में भारत के लोकतंत्र में जर्नलिज्म का मीडिया का क्या रोल होना चाहिए उस नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज? पहले एक कॉमन नॉन जर्नलिस्ट से पूछिए, राइट, वहां जैसे ज्यादा ऑनेस्ट ओपिनियन आएगी। मेरे साथ तो हो सकता है थोड़ी क्या होना चाहिए से ज़्यादा जो आपने कहा वही होना चाहिए। नेशन बिल्डिंग में वो उनको जुड़ना चाहिए। ये तो नेशन को नीचे खींचने में बहुत लोग आजकल जुड़े हुए हैं। शायद वो खुद नहीं जानते कि उन्होंने वो जो कर रहे हैं उसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है देश को और देश की प्रतिमा को। तो मेरे ख्याल से सबको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि इतना ज़्यादा पोलराइज दुनिया में अगर हम रहेंगे तो उससे किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जैसे पहले जो विवेक जैसे कहते हैं आजकल व्यूज़ हमको मिलते हैं, रात को 9 बजे समाचार नहीं मिलते हमें सिर्फ उसके अंदर घुस के कौन क्यों किसने ये कहा और किसने क्यों कहा और फिर वो आपस में लड़ना उतना ही दिखता है आजकल। तो न्यूज़ कहीं से मिलती ही नहीं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या आप टेलीविज़न पर देखें या अखबार में पढ़े, सब लॉपसाइडेड है। So where does a person like me, who probably is not interested in social media, who doesn't want to see television views, मुझे न्यूज़ कहाँ से, एक्चुअल न्यूज़ कहाँ से मिलेगी? तो ऐसे journalists need to, I think, go back to their schools and colleges and realize what they've been taught, you know, कि जर्नलिस्ट का पहला कर्तव्य क्या है? वो ये है कि देश के लोगों की आंखें खोलना। ये तो एक तरफ से एक ब्लिंकर लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से दूसरी लगा रहे हैं, तो सब लोग कंफ्यूज है उसमें। दीज आर माय थॉट्स, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म। सो मेरा ऐसा विचार है, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मुझे लगता है भारत देश में, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ भारत की बात करता हूँ, और भारत का जो सोशल इथॉस है उसको देखते हुए मुझे लगता है सबसे पहले तो जो एक रेगुलेशन जो है वो उसका पहला ये होना चाहिए कि भारत जैसे देश में अनलेस इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल, हम लोगों को टीवी में रिलीजन की बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इतने ज्यादा रिलीजन एंड सब रिलीजन इंडिया में है कि आप अगर अच्छी भी बात करेंगे किसी के बारे में तो किसी को आहत करेगी, प्रवोक करेगी। दूसरी चीज, एक्सपर्ट शुड बी एन एक्सपर्ट। ये नहीं कि आप किसी को भी उठा बुला के बैठा दें और कहें ये एक्सपर्ट की राय है, क्योंकि जिस देश में इतने लोग अशिक्षित भी हैं और वर्ल्ड व्यू ज्यादा नहीं है, जहाँ पे सारी दुनिया में ही है, तो जब आप कहते हैं एक्सपर्ट, अब मैं अगर 2 आर्टिकल किसी वेबसाइट में डिफेंस के ऊपर लिख देता हूं और अपने नीचे टाइटल लिख देता हूं ट्विटर में डिफेंस एक्सपर्ट, ये बहुत गलत बात है। मेरे ख्याल से ये एक हमें रेगुलेट करना चाहिए। और थर्ड थिंग, जो जो कॉर्पोरेट्स को परमिशन मिलती है, स्पेशली टेलीविजन न्यूज, मैं प्रिंट मीडिया पे तो थोड़ा अभी भी मुझे थोड़ी होप है, ऑप्टिमिज्म है, मुझे टेलीविजन न्यूज से प्रॉब्लम है। टेलीविजन न्यूज जब आप लाइसेंस लेते हैं, देयर शुड बी मैंडेटरी। जैसे हम एडवर्टाइजिंग में एक होता है, अगर आपको वो चाहिए तो इतना बिजनेस होना चाहिए। दे हैव टू कमिट हाउ मच मनी दे स्पेंड ऑन R&D। फील्ड, जो फील्ड R&D है, मतलब ग्राउंड पे आपका कितने लोग काम कर रहे हैं, ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अदरवाइज एक आपने कैमरा लिया, एक माइक लिया, एक छोटे रूम में आप बैठ गए एंड एवरीबडी इज अ न्यूज चैनल। और जिन जर्नलिस्ट को निकाल देती हैं न्यूज चैनल्स करप्शन या किसी भी चार्ज में, वो यूट्यूब में जाते हैं, वो भी बन जाते हैं। तो हर आदमी अगर जर्नलिस्ट आज की तारीख में है तो ऑडियंस कहाँ है? हमारे यहाँ जैसे हिंदुस्तान की फिलॉसफी में कहते हैं ना, दृश्य और दर्शक ये अलग चीज होती है, लेकिन आज दृश्य और दर्शक दोनों एक हो गए हैं, इसीलिए लोगों के साथ कंफ्यूजन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज मुझे लगता है जो बहुत डेंजरस है, फैक्ट चेकिंग। ये वर्ड ऐसा है, इससे लोग सोचते हैं जो फैक्ट चेकिंग कर रहा है वो वाकई में फैक्ट चेकिंग कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो फैक्ट चेकिंग नहीं कर रहा, वो एक पॉलिटिकल वेपन है जो किसी एक पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहा है, चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो। एंड दे आर डेफिनेटली, आई हैव फैक्ट्स विद मी। आपने फिल्म में भी देखा होगा, हमने उस पर एक सवाल उठाया है, पल्लवी जी एक डायलॉग में बोलती हैं, एंड आई हैव फैक्ट्स। और हुआ तो मैं एक शॉर्ट फिल्म तो बनाऊंगा ही, जस्ट टू एक्सपोज कि फैक्ट चेकिंग आज की तारीख में कितना डेंजरस बिजनेस बन गया है। कमिंग बैक टू द मूवी, आपने 2 मूवी अभी जो हाल में बनाई हैं, कश्मीर फाइल्स और ये तो वैक्सीन, बॉलीवुड की जो नॉर्मल ट्रेडिशन से उसको हट के बनाई है, नया आयाम दे, नया एंगल पर्सपेक्टिव दे रहे हैं बॉलीवुड मूवीज को। बॉलीवुड का क्या रोल रहा है नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज, कैसा रहना चाहिए 21st सेंचुरी? पहले बहुत अच्छा रोल रहा था। आई थिंक अंटिल द टाइम आई वाज ग्रोइंग अप 70s तक जो मुद्दे थे समाज में वो दिखते थे पर्दे पे। और कहीं ना कहीं हम जैसे
तब ना सोशल मीडिया था, ना कुछ इतना, टेलीविज़न की न्यूज़ भी इतनी नहीं थी, लेकिन हम तक वो पहुंचने का ज़रिया था फ़िल्म के थ्रू, और हमें पता चलता था कि इसके सॉल्यूशंस क्या निकालने हैं, क्या नहीं। उसके बाद एक कहीं पे मेरे ख्याल से, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हेन इट हैपेंड, लेकिन सिनेमा ceased being an art form and cinema just became a medium of entertainment. अब entertainment is good, I'm not against entertainment, लेकिन वो तो बहुत सारी सेक्टर्स से आपको मिल सकती है, लेकिन जो एक उसमें जो एक आर्ट फॉर्म था, उसमें जो एक मैसेजिंग थी, उसमें एक सम गिविंग बैक टू द सोसाइटी, जो एक फीलिंग थी पहले के हमारे फिल्म मेकर्स में, वो बची ही नहीं। अभी सिर्फ सब पैसे कमाने में लगे हैं। पैसा कमाना में, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ तो आपको करना चाहिए। जो लोग आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको आपको कुछ तो देना चाहिए, कुछ तो वैल्यूज़ आपको शेयर करनी चाहिए उनके साथ। वरना हमें और नहीं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या फ़र्क है कि सिर्फ पैसे की ही बात करते हैं, कुछ भी हो जाए तो डॉलर्स की बात करने लगते हैं लोग। वैसे वहाँ पे भी अगर हमको वैसे ही करना है, तो देन हाउ इज़ इंडिया डिफरेंट? तो कहीं ना कहीं हमें अपनी कहानियाँ, हमारी जो देश की समस्याएं हैं, या हमारी अपनी उपलब्धियां हैं, कुछ तो हम अपनी बात करें। और जब ये बहुत ज़्यादा होने लगा आसपास, तो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू जस्ट डू समथिंग न्यू। बट आई स्टिल hope that, you know, if there are younger filmmakers who just get inspired from our films, we will see, you know, good cinemas coming up. We'll see Indian stories coming up. We will, and younger generation has so many more solutions, you know, that the minds work so much faster than anyone else. तो Gen Z के अगर filmmakers निकले, तो I'm very hopeful, very optimistic कि वो वाला दौर वापस आएगा, जब बिमल रॉय या राज कपूर या इस तरह के जो लोग, सलील चौधरी वगैरह, इन्होंने जो पहले फिल्में बनाई हैं, ये सारी फिल्में हमको वापस देखने को मिलेंगी, जो इंडिया सेंट्रिक फिल्में हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि जो सबसे बड़ा मेरी जो शिकायत बॉलीवुड से आज के है, देखिए भारत में पूरी फिल्में कम्युनिस्ट लोग बनाते थे शुरू में। जितना मूवमेंट था वो इप्टा का था, आप भी जानते हैं इस बात को। सारे लेफ्टिस्ट लोग बंगाल से आए, उन्होंने फिल्में बनाई हैं, और वो ऑपरेसर और ऑपरेस के बीच के, जमींदार और किसान, फिर मिल ओनर वर्सेस लेबर, फिर उसके बाद करप्ट पॉलिटिशियंस वर्सेस अ कॉमन टीचर का बेटा, ये। पर हमारी फिल्मों में विलन जो था वो हमेशा एक सोशल इविल था, और जो हीरो होता था वो एक कॉमन मैन का बेटा होता था, कॉमन टीचर का बेटा, नर्स का बेटा, किसी लॉयर का बेटा, और एक आम आदमी भारत का होता था। इसीलिए उन फिल्मों में माँ बाप के रिश्ते, ईश्वर, अल्लाह, रब, ये सारा जुड़ा रहता था। लास्ट में रिजॉल्व हम लोग अपने इथॉस के हिसाब से करते थे, और वो जो हीरो था वो रिवोल्ट करके सत्य की विजय होती थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई एक तरह से होती थी, महाभारत। हुआ क्या कि लिबरलाइजेशन के बाद कोइंसिडेंस था कि करण जौहर, शाहरुख खान का ईरा आया। उनको ये समझ में आया कि सारा मार्केट तो एनआरआई, यहाँ पे मैं $100 100 का टिकट बेचता हूँ, वहां मेरे को $15 का टिकट बिकता है, तो मैं, और वहां पे मुझे कमीशन भी ज्यादा मिलता है, तो व्हाई शुड आई बॉदर अबाउट दिस मार्केट, लेट्स गो टू दैट मार्केट। और उनने जब उस मार्केट को केटर करना शुरू किया, तो हमारी फिल्मों से कॉमन मैन गायब हो गया। अगर आप पिछले 20 साल की बड़ी फिल्में उठा के देखें, इक्का दुक्का, 3 इडियट्स और ऐसी 4-5-6 फिल्में छोड़ दें, तो उन सब में कॉमन मैन नहीं है। इसीलिए जब कॉमन मैन की फिल्में आती है, चाहे वो दंगल हो, चाहे वो 3 इडियट्स हो, या कश्मीर फाइल्स हो, आम आदमी भूखा इतना हो गया कॉमन मैन की फिल्में देखने के लिए, और कॉमन प्रॉब्लम्स जो है सोसाइटी के। तो मैं हमेशा हंसी मजाक में कहता हूं कि आज कई लोग पूछते हैं कि आज के बॉलीवुड को कैसे डिफाइन करेंगे। मैंने कहा कि आज के बॉलीवुड को देख के आप लंदन और न्यूयॉर्क के बारे में ज्यादा जान जाएंगे, भारत के अलावा भारत के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। तो कहाँ गया वो बिहार, कहाँ गया वो यूपी, कहाँ गया वो तमिलनाडु, कहाँ गया हमारा बंगाल, ये सब एब्सेंट है आज की तारीख में। तो दैट इज माई प्रॉब्लम। और इसलिए नेशन बिल्डिंग में अनलेस यू टेल स्टोरीज ऑफ अ नेशन टू द नेशन, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक बहुत कॉन्शियसली हमने डिसाइड किया, और हमने कहा हम अपने सिनेमा को भारत का सॉफ्ट पावर की तरह यूज करते हैं, शोकेस इट टू द वर्ल्ड, सो दे गेट टू नो फॉल्ट लाइन्स इन द राइट पर्सपेक्टिव, प्लस दे आल्सो नो अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम है द दिल्ली फाइल्स, वो बना रहे हैं हम लोग, और वो पार्टीशन का जो ट्रूथ है, जो कैबिनेट मिशन था और क्यों पार्टीशन हुआ, उसके एग्जैक्ट रीजंस क्या थे, कहाँ हुआ,
और ऐसी क्या कमी रह गई पार्टीशन में, तो उस डिसीजन में, कि आज तक वो पार्टीशन खत्म नहीं हुआ है। और अगर आप देखिए एक साइकोलॉजिकल इमोशनल लेवल पे वो पार्टीशन कंटिन्यूअस चला रहा है। इज द, आई कॉल द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पार्टीशन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। और उसी का नतीजा है कि कश्मीर, गुजरात, भागलपुर, शाहीन बाग, ये सब उसी थॉट प्रोसेस का, उसी आइडियोलॉजी का पार्ट है। आपके जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि जिस तरह से आप मूवी बना रहे हैं, दीज आर ट्राइंग टू हेल्प वन पॉलिटिकल विंग इन द कंट्री। क्या ये बात सही है? अब ये तो देखिए, जो आदमी लव स्टोरी बना रहा है उस पर भी इल्जाम चाहे तो कोई लगा सकता है, अगर पॉलिटिकल रीजन हो कि आप हर समय प्यार की बात करते हैं, दुनिया में नफरत भी, तो उसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाते, राइट। मुझे शेखर कपूर ने बड़ी अच्छी बात बोली, लंदन में मिले लंच के लिए, तो उन्होंने बोला, विवेक मैं बहुत लकी हूं, मैं बच गया। अगर मैं आज की तारीख में फूलन देवी बनाता तो बैंडिट क्वीन बनाता, अगर मैं आज की तारीख में, तो सब कहते आपने ठाकुर का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं दिखाया, आपकी फिल्म में से तो इन लोगों का फायदा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बताइए कि ताशकंद फाइल्स हमने जो बनाई थी वो तो लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बारे में थी। तब भी कांग्रेस पार्टी ने यही बोला कि इस फिल्म से तो इस सरकार को फायदा हो जाएगा, और मुझ पर, हम पे कितने लीगल केसेस कांग्रेस ने हमारे ऊपर कर दिए। पर लाल बहादुर शास्त्री तो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे भाई, उनका बीजेपी से क्या लेना देना है। ये कश्मीर का जो किस्सा, ये तो 30-32 साल पुराना है, हमने आज का तो कुछ नहीं दिखाया उसमें, तो उसका इस गवर्नमेंट से कैसे फायदा होगा। इसका मतलब कहीं ऑपोजिशन वालों को ऐसा लगता है ये गवर्नमेंट नेशन के साथ जुड़ी है, आइडेंटिकल, और जो सत्य भी है, ऐसा लगता भी है। ये जो फिल्म है वैक्सीन पे जो हमने बनाई है, इससे गवर्नमेंट का अगर फायदा होगा, कि देश का फायदा होगा, कि साइंटिस्ट का, मुझे पता नहीं है। पर आपने देखा कहीं भी सरकार का जिक्र तक नहीं है फिल्म के अंदर, हमने कहीं दिखाया नहीं। बल्कि प्राइम मिनिस्टर की जो इतनी अहम मीटिंग है, कायदे से अगर एक साफ सुथरे पॉलिटिकल देश में दिखाना चाहिए था, क्या गलत बात है उसमें। पर मैंने इसीलिए नहीं दिखाया, मुझे पता था अगर मैं नाम भी लूं, अगर घुसूंगा भी उस गली के अंदर, तो बड़ी मारा पीटी होगी। एंड आई डिडंट वांट टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम साइंस टू पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। दिल्ली फाइल जो फिल्म है वो पार्टीशन के ऊपर है, उसका सरकार से कैसे फायदा होगा मुझे पता नहीं है। उससे तो गांधी जी की जो, नेहरू जी की पार्टी है कांग्रेस, उसका फायदा होना चाहिए। हम तो पार्टीशन का सत्य दिखाने जा रहे हैं। ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि हमारी कुछ एक आध फोटोग्राफ्स मोदी जी के साथ छप गई थी। जैसे और लोग मिलते हैं वो सबके साथ मिले हुए हैं, हमारे साथ भी मिले हैं। फर्क ये हो गया कि बाकी फिल्म स्टार्स जो थे, फोटो खिंचाने के बाद बाहर निकल के उनको 2-4 गालियां दे दी तो सब न्यूट्रलाइज हो गया। हमने गालियां नहीं दी प्राइम मिनिस्टर को, निकल के हमने उनकी तारीफ में 1-2 बातें बोल दी, जो हमें अच्छी, पल्लवी को भी कुछ एक चीजें अच्छी लगती है, मुझे भी लगती है। मुझे मोदी जी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से वो करते हैं। हमने 1-2 अच्छी बातें बोल दी तो लोगों ने सोचा होगा कि हमारा उनसे कुछ लेना देना है, इस पार्टी को कहीं ऐसा तो नहीं हम फायदा करा रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में लोगों के लिए सोच पाना असंभव हो गया है कि कोई भी काम बिना किसी के फायदे के लिए कर सकता है। इसमें फॉलोअप करना चाहूँगा कि पिछले 9 सालों में, अब तो 10 साल होने वाले हैं, भारत का विकास, इंडिया अंडर मोदी, हाउ डू यू सी दैट? बताइए, महिला से पूछिए। I am greatly impressed by our leadership, I must say. उन्होंने जिस तरह से हमारी छवि पूरी दुनिया में बनाई है, आज मुझे फ़र्क महसूस होता है। मैं जब भी कभी विदेश में ट्रैवल करती हूँ, जैसे यूएस में आती हूँ, मुझसे लोग इमिग्रेशन में ही पूछ लेते हैं, सो वेयर आर यू फ्रॉम, जैसे इंडिया, ओह योर प्राइम मिनिस्टर इज़ अ गुड मैन, योर प्राइम मिनिस्टर इज़ ग्रेट। पहले कभी ऐसा किसी ने बोला नहीं था। तो भारत की छवि लोगों के मन में बदल रही है, और ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा मतलब इतनी जनसंख्या है हमारी, वी कैन डू सो मच फॉर द वर्ल्ड। अगर हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो, एंड इफ द वर्ल्ड स्टार्टेड टेकिंग नोटिस, देन दिस इज द टाइम फॉर इंडिया टू शाइन। तो आई एम वेरी हैप्पी विथ एवरीथिंग दैट ही इज डन। कुछ रहती है खामियां थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ, बट नो पर्सन इज गॉड, यू नो। सो we can excuse a little bit here and there, but maximum part of it, I think he's proved to be a great leader, the need of the hour, and I think this leadership should continue for a while if India has to grow. And the reason I'm saying this is again because I don't see any other leader in India. अगर कोई उनके टक्कर में आके खड़ा हो तो हमको समझ में तो आए कि हाँ, नहीं, मोदी जी नहीं, शायद ये आदमी कुछ कर सकता है हमारे देश के लिए, he is an equally strong person. Unfortunately, I don't see anybody. So we don't have a choice, you know. I'm being very honest about it. मेरा विचार ऐसा है कि मोदी जी ने क्या, जो एक जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, जिसके बारे में कोई करता नहीं है बात,
वो ये है कि बिफोर मोदी जी इंडिया वॉज साइकोलॉजिकली अ डिफीटेड कंट्री। सब लोग को लगता था अरे कैसे होगा, क्या होगा, आप भी जब आए होंगे अमेरिका, यही आपके एक इंडिया कांट डू इट, एक कल्चर, एक माइंडसेट था, अरे यहाँ सब राम भरोसे। मोदी जी ने जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, छोटे तबके का है, उसको एक कॉन्फिडेंस दिया है कि तुम करो, एक कदम आगे बढ़ो तो देश भी कर सकता है। मेरे ख्याल से ये एक साइकोलॉजिकल जो शिफ्ट हुआ है पूरी कंट्री के अंदर, ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। दूसरा, मोदी जी ने कई उलझे हुए मसले थे देश के, जो बहुत एनर्जी लेते थे, उनको सॉर्ट आउट किया है। एक ऐसा नहीं कि उनके पहले स्वच्छता के ऊपर काम नहीं हुआ, पर उसको एक दिशा दी उनने, और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर खुद कंट्रोल किया। टॉयलेट का काम है, लड़कियों के एजुकेशन का काम है। पर दो चीजें जो इंडिया के अगले 50 साल विकास में बहुत काम आएंगी, वो दो जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन है। देखिए, मोदी जी हो ना हो, रॉकेट तो ऊपर जाने ही जाने हैं, ओके, कई चीजें अपने आप होंगी, लेकिन कश्मीर के मसले को जो हल किया है, आज की कुछ भी लोग बोलते हो, हम तो अभी श्रीनगर होके आए हैं, वो धीरे धीरे बदल रहा है। और अगले 5-6 साल में मेरा पूरा विश्वास है इट विल बिकम, लोग भूल भी जाएंगे कि कभी कश्मीर में समस्या होती थी। ये सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। दूसरा जो उनका सबसे बड़ा, जो मुझे लगता है एक कंट्रीब्यूशन है उसमें, वो है पूरी कंट्री को फोकस करवाया डिजिटलाइजेशन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि अगर मोदी जी नहीं होते तो डिजिटलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि तो एक ग्लोबल प्रोसेस है, लेकिन पूरी कंट्री को ये बोलना कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम इसमें आगे बढ़ो। तो रिक्शे वाले भी और पान वाले भी, आज आपको चवन्नी की चीज खरीदनी हो तो आप जाके पंचर में ठीक कराने अपनी गाड़ी का एक दिन फंस गया था, तो वो पूरा का पूरा गूगल पे किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। ये जो एक चेंज ओवर, जो भारत जैसा बहुत कठिन देश है। तीसरा, कोविड के वक्त में आप देखिए सारी दुनिया में वैक्सीन को लेकर प्रॉब्लम्स हुए, यहाँ पे तो 35% लोगों ने लगवाया ही नहीं। भारत में सिर्फ थोड़े वक्त के लिए, 1 महीने के लिए समस्या हुई, जब ये फॉरेन वैक्सीन की लॉबी ने लोगों के थ्रू डर फैलवाया था, पर वो इमीडिएटली सॉल्व हो गया और भारत में ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड। तो ये जो मोदी जी मास मोबिलाइज करते हैं, लोगों को नेशन बिल्डिंग की तरफ जोड़ने का काम करते हैं, और भारत की साइकोलॉजी को समझ के जो करते हैं, वो मेरे ख्याल से एक अद्भुत काम है। और लीडर का और काम होता क्या है? लीडर खुद तो नहीं जाके कोई चीजें बना सकता है, सड़कें। लीडर का काम होता है जनता को प्रेरित करना, एक पॉजिटिव दिशा में ले जाना, और राष्ट्र की जो इमेज है उसको, सॉफ्ट पावर को पूरे वर्ल्ड में फैलाना। आई थिंक ऑन दोस काउंट्स आई वुड गिव 10 आउट ऑफ 10 टू हिम। पल्लवी जी, आपने कहा कि उनको कंटिन्यू करते रहना चाहिए, तो नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाला है, तो देश की जनता तय करेगी कौन प्रधानमंत्री बनता है। बट इफ ही कम्स इन द नेक्स्ट थर्ड टर्म, व्हाट आर द थिंग्स यू वांट हिम टू डू? A lot of things. I mean, फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जहाँ पे भारत पहुँचा है उसके आगे मैं और देखना चाहती हूँ। हमारे यूथ्स को जो अपॉर्चुनिटीज़ पहले नहीं थी, करियर ऑप्शंस जब हम छोटे थे वो 3 ही हुआ करते थे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ले लो। आज ऑप्शनल करियर्स की बात होती है। आज कितने सारे लोग अलग अलग करियर्स में, जो अनहर्ड ऑफ करियर्स हैं, ऐसे प्रोफेशंस में लोग जा रहे हैं। तो उसके लिए उनको और फैसिलिटेट किसी तरह से गवर्नमेंट को करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट जो उन्होंने किया है, आई थॉट दैट वाज अ वंडरफुल मूव, क्योंकि जो अनएजुकेटेड सेक्टर है अपने यहाँ पे, उनको भी अपने पैरों पर खड़े होने का हक चाहिए। मैं चाहती हूँ स्किल डेवलपमेंट को वो और थोड़ा सा आगे ले आए, क्योंकि मैं यहाँ जब देखती हूँ लोगों को, यहाँ के लोगों में, चाहे वो माली हो या यहाँ के स्वीपर हो, जिस लेवल का कॉन्फिडेंस है उनको अपने आप में, ये मैं भारत के लोगों में देखना चाहती हूँ। और वो तभी होगा जब उनको अपने स्किल पे कॉन्फिडेंस हो। तो बिकॉज आई ऑल्सो कंसिडर माई प्रोफेशन टू बी वन ऑफ द क्राफ्ट्स, तो विच रिक्वायर स्किल। तो मुझे उस पर मैं चाहती हूँ ज़्यादा अगर वो फोकस करें, तो दैट विल प्रूव वेरी गुड फॉर आवर कंट्री। एंड ऑफ कोर्स everything else that he's doing, he keeps coming up with newer ideas. That's what makes him a prime minister, and that's why I'm not the prime minister. So I hope he keeps coming up with, new ways, new ideas to make India a better and a bigger nation. मैं बोलूँगा कि 3 एरियाज जिसमें मोदी जी शायद करना भी चाहते हो, काम करना पा रहे हो मजबूरी में। जुडिशियल रिफॉर्म्स, आज भारत में जुडिशरी को लेके लोगों का कॉन्फिडेंस इज एट द लोएस्ट एबिस, समझ लीजिए। लोग कोर्ट कचहरी से डरते हैं, जबकि कोर्ट कचहरी न्याय देने का मंदिर होना चाहिए। तो वो लोग, तो जुडिशियल रिफॉर्म्स वी नीड।
वी नीड पुलिस रिफॉर्म्स, जो कि इंट्रोड्यूस भी किया है अभी अमित शाह जी ने, पर वो सिर्फ बिल बन के ना रह जाए, उस पर काम हो बहुत ज़्यादा। और तीसरा जो है वो है इंडिया को इनोवेशन हब बनाना। इंडिया इनोवेशन के लिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, क्योंकि हम लोग जुगाड़ समझते हैं, लेकिन उसको एक दिशा देने की ज़रूरत है, जो काफ़ी कोशिश की भी जा रही है उस दिशा में। और एक मेरी पर्सनल लेवल पे इच्छा है, जो शायद कभी पूरी नहीं होगी, कि मीडिया में रिलीजन के बारे में बात करना इलीगल हो जाना चाहिए। मीडिया में आप अपने धर्म के बारे में जो चाहे बोलें, लेकिन किसी और के धर्म के बारे में कुछ भी बोलना मेरे ख्याल से अलाउड नहीं होना चाहिए। उसका क्या तरीका होगा, कैसे होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि सिर्फ आप जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म से ही कंट्री आगे नहीं जाएगी। Social reforms. हम लोगों को इंफॉर्मेशन रिफॉर्म की भी ज़रूरत है, और दैट्स व्हाट आई थिंक। या Thank you so much. Thanks a lot. थैंक यू Thank you. ललित It जी। was lovely speaking to you.